aware that IGNOU is a central university which was established under Act of Parliament in 1985, and since then it is providing higher education to the masses and to the persons who are for those the higher education is not accessible. So uh, the IGNOU is providing higher education at the doorsteps of everyone. As you know, you will get the study material from IGNOU as you take the admission, but sometime it got delays due to various reasons. So there is a website eGyan Kosh, or there is a mobile app on which you can access the study material of IGNOU, eGyan Kosh. So, and you know all about the website of IGNOU, that is www.ignou.ac.in. And I would like to impress here that go to the IGNOU website, click the student zone, and there you will find a admission tab. Click that and see your registration detail first, because sometimes when you fill up the form, you misspell your name or address or phone number. So check that in the registration details. If there is any uh, misspelling or something wrong in that, then you can email us at rcchandigarh@ignou.ac.in, citing your enrollment number, program name, and what you want from us. So you can always mail us, and we'll be there to rectify that immediately. But after you complete the course, it would be very difficult to uh, to correct it. So please check that now. And most of the students who are present here are of certificate program or semester based program. Certificates programs are 6 months, and semester based program are also just 6 months. After 6 months, you have to appear in the examination. Means if you have taken the admission for January session, then you are eligible to appear in the examination in June 2023, for which you have to apply right now. And you have to submit the assignments, if you can, by 30th April. The assignment questions are available on the IGNOU website. That is, I told you, www.ignou.ac.in, where you will find under Student Zone Assignment tab. And you click that, and there are a lot of programs and courses, master's degree, bachelor's degree, and all that. So you a certificate program, PG diploma. Then you can click the certificate program if you are the certificate, and if you are MPA student, yeah, MCA student or BCA student, that is for graduation and post graduation. Then after that, you can the latest one, 2023 assignment, you can download the question paper, and the instructions for writing the assignment paper are given in that. Follow that those instructions and submit that at your study center. If you cannot send, you cannot go personally, then you can send it through by post, or you can send also the by post at the regional center address, which is given in the regional center website. Please go through the IGNOU regional center website also, and our local office as CDCL, IGNOU regional center, CDCL, sector 28, B, Chandigarh. You can send there by post, or you can submit there also. So be careful about these dates. And those who are in MCA, MBA, or BCA, they have to re-register also for the second semester. So the link will be open in last week of April, I think. It will be available on the website. Keep visiting the website, because all the updates, all your hall tickets, or any notification, it comes on the IGNOU website. So just save that website on your mobile, and you can check that each and everywhere. So, and the study material, I have already told you that you have to appear in the examination. But as you all know, the IGNOU provides the flexible education, flexibility in the education also. What does it mean? That is in terms of time and your place, wherever you are, you can
study the IGNOU study material, or flexibility in terms of examination also. Means you can, if you are the certificate, you have taken the admission in the certificate course, then it is a 6 month course, but you can complete it in a 1 year, or some certificate courses I think 1.5 year. So you can appear in December exam also. If anything, any paper due to your busy schedule, you cannot appear right now, then you can appear in the December also. So there are, as you all know, that the certificate program is 18 credits, 18 credits programs. The IGNOU courses or subjects all are credit based. What is the credit? Credit based, one credit is equal to the 30 hours of your study. That includes all the activities per related to that particular subject or unit. uh, I'm sure you all might have gone through the study material before that, and go through that. If you have not received the study material, that will be dispatched usually from the Delhi. When the data is downloaded and the admissions are completed, then the the study material is dispatched from Delhi. Sometimes we have received back due to address, there is address problem and the postman does not deliver, then it comes back to us. Then we inform the students through SMS or through phones or through emails, please take your from us now. So anyway, you can download also from the eGyan Kosh in IGNOU website. There is a tab egyankosh.ac.in, or direct address is egyankosh.ac.in. So you can download just in the search tab, write your program name. The study material will come, and you can download in the PDF format and save on the, and you can study for the while. And all, as you know, that you have to study at least 2 hours a day to clear the IGNOU papers. It is not like easy to get to exit from IGNOU programs. You have to put in a lot of labor and concentration and dedication, also sincerity also. But anyway, you are not going to any classroom or something like that. There are the study centers which conducts the uh, counseling sessions, but it is not mandatory for theoretical paper. Of course, this is the practical courses are compulsory. That is for MCA and BCA courses. But as far as the theoretical classes, the study material is enough, I think. And if you want to interact with your peer group, then you can go for counseling and to clear the doubts. Counseling sessions are not like classroom teaching. It is just clearing your doubts about the study material, about your programs, and other related things. So if you have any problem, you can you can go to the regional center, as I already told the address, and you can email us and we'll revert for sure. That is rcchandigarh at the rate of ignou.ac.in. And you can raise the query on that is igram also. uh, when you go, whenever you go on the IGNOU website, you will find a igram and you can register your complaint there, and that would be replied and that would be rectified. So it is not, but you have to follow the timings and real time scales so that you can fill up the form and re-registration for MC and BC and MP courses, MBA courses. And but as far as and timely fill up the exam form, all that thing you have to do, and concentrate on your study. With these words, I would like to invite my regional director, Dr. Bhanu Pratap Singh, to interact with you. Over to you, sir. फाइल को जरा इसको पुट अप कर ले जरा. हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल. हैप्पी टू सी यू ऑल. रमनीश वर्मा जी को देख पा रहा हूँ. नमस्कार.
काइंडली इंट्रोड्यूस करेंगे सर आप अपने आप को? थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए। Hello, जी वेलकम। sir. My name is Ratish Verma. I'm a retired person. I have retired from central government office last year. So, अभी किस प्रोग्राम में एडमिशन लिए हैं आप? CPY. सर्टिफिकेट इन योगा। Yes, sir. गुड गुड, हैप्पी टू सी यू सर। Thank you. Thank you. सो डियर लर्नर्स, डॉक्टर नूरुल जी आपको बहुत सारी बातें शेयर कर चुके होंगे। मैं थोड़ा सा ही समय लूँगा आपका। देखिए, आप इग्नू जो विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है जिसमें आपका नामांकन हुआ है, उसमें आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हो कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, तो डेफिनेटली इसकी कुछ चीज़ें कन्वेंशनल सिस्टम से डिफरेंट होगी। कन्वेंशनल सिस्टम से डिफरेंट मीन्स, पहले नूरुल जी ने आपको कहा कि आपकी एकेडमिक काउंसलिंग होगी। एकेडमिक काउंसलिंग इज नॉट ए क्लासरूम टीचिंग। उसमें आपको पढ़ करके आना होगा, स्टडी मटेरियल से आपको पढ़ना होगा, और आपको एक शेड्यूल डे पर आपकी काउंसलिंग होगी, और उस काउंसलिंग का शेड्यूल आपको पहले से ही आपको मुहैया कराया जाएगा फ्रॉम योर स्टडी सेंटर। और आपको सलाह दी जाती है कि आप आरसी चंडीगढ़ की जो वेबसाइट है उसको भी लगातार देखते रहें, क्योंकि ये सारे शेड्यूल आपकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। कुछ क्लासेस जो ऑनलाइन होंगी उसके भी लिंक आपको उपलब्ध होंगे, आप ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, क्लासरूम काउंसलिंग के बाद जो आता है कि आपके काउंसलिंग करेंगे कैसे जब आपका स्टडी मटेरियल ही नहीं हो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्टडी मटेरियल बाई पोस्ट मुख्यालय से आपके घर के एड्रेस पर भेजा जाता है। किन्हीं कारणों से अगर आपको मिलने में देरी हो रही है या अभी तक नहीं मिला है तो प्लीज़ उसके लिए आप पढ़ाई करना बंद ना करें। इग्नू ने और बहुत सारे आपके लिए अध्ययन सामग्री के बहुत सारे आपको उपलब्ध कराए हैं अल्टरनेटिव, जैसे इग्नू का ई कंटेंट ऐप है, वहाँ इग्नू की सारी अध्ययन सामग्री उपलब्ध है, वहाँ से आप पढ़िए और अपने असाइनमेंट लिख लीजिए। दूसरा ई ज्ञान कोश है, ई ज्ञान कोश में भी आप अपने अध्ययन सामग्री का अवलोकन कर सकते हैं, उसका पढ़ सकते हैं। और मैं आई मीन टू से कि आप डिले मत करिएगा। 30 अप्रैल अगर लास्ट डेट है असाइनमेंट सबमिशन का, अपने असाइनमेंट 30 अप्रैल से पहले लिख लीजिए। और ये इंडक्शन मीटिंग कराने का पर्पज़ भी यही है कि आपको विद्यार्थियों को पूरी तरह से अवगत करा दिया जाए कि आपको कौन सी एक्टिविटी कब करनी है। कई बार क्या होता है कि अगर हम इंडक्शन मीटिंग नहीं कराएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी एक्टिविटी कब। और फिर हालांकि रीजनल सेंटर चंडीगढ़ इज़ वेरी प्रॉम्प्ट टू प्रोवाइड ईच एंड एवरी काइंड ऑफ सपोर्ट सर्विस थ्रू SMS, थ्रू ईमेल, यानी हम अपने विद्यार्थियों को हर एक्टिविटी का SMS या ईमेल भेजते हैं। डॉक्टर नूरुल हसन जी ने कहा है कि अगर आपका मोबाइल नंबर में अगर कोई इशू है, कोई SMS ना आए, अभी भी हमने सारे विद्यार्थियों को आज की मीटिंग अटेंड करने का SMS दिया है। अगर बीच में आप कभी भी अपना मोबाइल नंबर चेंज करते हैं या खो जाता है तो प्लीज़ डू अपडेट विद रीजनल सेंटर चंडीगढ़, क्योंकि अदरवाइज हम सारे नोटिफिकेशन आपके उसी पुराने मोबाइल नंबर पर भेजेंगे और जो आपको उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। असाइनमेंट्स कैसे लिखें, चूँकि मैंने कहा ना आप कन्वेंशनल सिस्टम से हैं, तो कई बार हमें लगता है कि असाइनमेंट्स हमें कंप्यूटर भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकालेंगे। नो, या आपके जो असाइनमेंट हैं शुड बी हैंड रिटन में भी कैसे, उसका भी एक तरीका है। आप कोई भी पेपर लें, प्लेन पेपर लें या आप लाइनदार पेपर लें, आप उसका लेफ्ट एंड राइट 1-1 इंच का हाशिया छोड़ दीजिए। उसके बाद आप तो जो क्वेश्चंस हैं वो इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, वहाँ से एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उन क्वेश्चंस के आंसर अध्ययन सामग्री को पढ़ने के बाद आपको अपनी ही भाषा में देना है, ना कि किताब की लैंग्वेज में। ना ही आप उस किताब की कॉपी नहीं करेंगे, पहले अध्ययन सामग्री को पढ़ेंगे और उस प्रश्न का, उस क्वेश्चन का आंसर अपनी ही भाषा में, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो। अगर आपने कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपने प्रवेश लिया है और जिसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, MA इंग्लिश को छोड़ करके ऐसे सभी कार्यक्रमों की आप असाइनमेंट अपनी हिंदी में भी आप जमा कर सकते हैं। असाइनमेंट के बारे में बात कर रहा था कि 1-1 इंच का हाशिया आप क्यों छोड़ेंगे। वो इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि आपके जब असाइनमेंट्स चेक होते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ प्री एग्जामिनेशन प्रिपरेशन।
आपको हम असाइनमेंट के माध्यम से आपकी परीक्षा की तैयारी भी कराते हैं। जब आप असाइनमेंट लिखते हैं, जब वो इवेल्युएटर के पास जाता है, तो उसमें हमारे जो इवेल्युएटर हैं, शिक्षक हैं, वो आपको असाइनमेंट में कमेंट देते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कमेंट देते हैं। कुछ कमेंट मार्जिन पे होते हैं जिनको मार्जिनल कमेंट्स बोलते हैं, कुछ कमेंट्स लास्ट में होते हैं जिनको ग्लोबल कमेंट्स। मार्जिनल कमेंट मीन्स आपने जो सवाल लिखा है किसी भी क्वेश्चंस का, उसमें हमारे इवेल्युएटर आपको बताते हैं, क्योंकि कन्वेंशनल सिस्टम में शिक्षक आपके पास होते हैं और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में शिक्षक आपको डिफरेंट सपोर्ट सर्विस डिफरेंट माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो असाइनमेंट्स में जब हमारे शिक्षक उसको चेक करते हैं तो उसमें आपको समझाते हैं कि आपने असाइनमेंट अच्छा लिखा है, लेकिन अगर इसको आप और अच्छे से लिखते या इस तरह से लिखते तो आपको ज़्यादा अंक, ज़्यादा अवार्ड, ज़्यादा ग्रेड मिल सकते हैं। इसलिए आप असाइनमेंट में थोड़ा थोड़ा सा आप स्पेस जरूर छोड़ें। दूसरा, एक सवाल लिखने के बाद 1-2 लाइन का जरूर गैप छोड़ें, क्वेश्चंस और आंसर्स को मिलाएं ना, यानी पहले का अगर आंसर खत्म हुआ दूसरे को उससे चिपकाए नहीं, 1-2 लाइन का स्पेस जरूर छोड़ दें। ये मैं सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसा हम असाइनमेंट लिखवाते हैं वैसे ही आपको अध्ययन सामग्री भी इग्नू प्रोवाइड कराता है। इफ यू सी, अगर किन्हीं के पास इग्नू की अध्ययन सामग्री है तो आप देखेंगे कि अध्ययन सामग्री में 1-1 इंच का लेफ्ट एंड राइट में छोड़ा हुआ है स्पेस। कई बार हमारे विद्यार्थी जो हमसे नए जुड़ते हैं उनको लगता है कि नहीं, ये एक एक इंच का स्पेस क्यों छोड़ा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, वो 1-1 इंच का स्पेस इसलिए छोड़ा गया है, जब भी आप अपने अध्ययन सामग्री को पढ़ते हैं, निसंदेह उस अध्ययन सामग्री को पढ़ते समय कुछ ना कुछ कठिनाई तो जरूर आती होगी, चाहे वो वर्ड्स को समझने में, या कई बार लगता है कि आपको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए। तो आप उन सब जिज्ञासाओं को अपने अध्ययन सामग्री में जो स्पेस दिया है लेफ्ट एंड राइट में, उसमें आप उसको नोट कर लेते हैं, ताकि आने वाले काउंसलिंग सेशन में उन जिज्ञासाओं को अपने एकेडमिक काउंसलर से आप उनको रिजॉल्व करा सकें, उनसे बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। तो कुल मिलाकर ये कहिए कि आपके जो एकेडमिक काउंसलर हैं, आपके असाइनमेंट के इवेल्युएटर के रूप में आपके साथ होते हैं, काउंसलिंग के रूप में आपके साथ होते हैं, और डिफरेंट जो सपोर्ट सर्विस हैं आपको जो प्रोवाइड कराता है इग्नू टाइम टू टाइम, उस समय आपके साथ होते हैं। मैं यूँ कहूँ कि कन्वेंशनल सिस्टम में तो आपको 2 से 3 घंटे आपके शिक्षक आपके साथ हैं, लेकिन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में आपके पास आपको प्रयास करना है, आपको आगे आना है, आपको असाइनमेंट लिखने हैं, तो आपका शिक्षक आपके साथ होगा। आपकी अध्ययन सामग्री में आपका शिक्षक, इग्नू की सामग्री को कहा गया है कि टीचर इन इग्नू स्टडी मटेरियल। जब आप मनोज जी म्यूट कीजिए, पहले आपको मौका दिया जाएगा, आप बारी बारी से अपनी बात रखिए, पहले हमको सुन लीजिए, उसके बाद ये मीटिंग आप ही के लिए है, दिस इज योर शो। सो टाइम लाइन्स जो आपको दी जाती हैं उनका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। टाइम लाइन्स आपको हम SMS के थ्रू भी प्रोवाइड कराते हैं, ईमेल के थ्रू भी, लेकिन कई बार बहुत सारी चीज़ें होती है, टेक्नोलॉजी है, कई बार आपको कोई इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, तो प्लीज़ हमारी जो इग्नू की वेबसाइट है हेडक्वार्टर की www.ignu.ac.in और जो rcchandigarh.ignu.ac.in, दोनों का अवलोकन, अगर आपको मुख्यालय की नहीं देख पा रहे हैं तो आप अपने रीजनल सेंटर चंडीगढ़ की वेबसाइट टाइम टू टाइम जरूर देखिए। उसके बाद मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, उसके बाद ना ही तो आपको हमें ईमेल करना पड़ेगा कि हमारे ये प्रॉब्लम है, हमें ये चीज़ चाहिए, ना ही आपको हमारे पास आने की ज़रूरत होगी। बस सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी जो RC की वेबसाइट है उसका अवलोकन करते रहिए, और उसमें बहुत सारे हमारे जो सोशल मीडिया के बहुत सारे अकाउंट हैं, ट्विटर हैंडल भी है, फेसबुक भी है, उन पर भी तमाम तरह की जानकारी, तमाम तरह की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाती हैं, उनको भी आप देखिए। और चूँकि जहाँ तक हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो उसको अपने जो परिचित हैं उनको भी आप शेयर करें, ताकि एक एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी जानकारी उन तक भी प्राप्त हो सके। इग्नू की एक देखिए सबसे अच्छी जो कहें विशेषता, इस विश्वविद्यालय में उम्र का कोई बाउंडेशन नहीं। आप देख रहे हैं रमनीश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे जो हमारे यंग स्टूडेंट हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर मैं यूँ कहूँ कि पिता, पुत्र और दादा, तीन पीढ़ियां हमारे विश्वविद्यालय में एक साथ पढ़ती हैं। सो वेलकम यू ऑल। अब आपको अगर कोई क्वेरी हो तो पहले हमारे डॉक्टर सविता हैं,
वो आपके साथ इंटरेक्ट करेंगी, उसके बाद में फ्लोर विल बी फॉर यू। थैंक यू। डॉक्टर सविता जी। डॉक्टर साहब एक चीज मैं कह दूं, वो आपने शायद मैंने सुना नहीं होगा, हो सकता है आपने बताया हो जी कि प्लीज प्लीज। जो हमारे ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं उस पर भी एक नज़र रखिए और इग्नू वेबसाइट देखते रहिए, क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन आता है। और हमारी वेबसाइट भी देखते रहिए आरसी चंडीगढ़ की, क्योंकि और जो आपका जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें एडमिशन बहुत कम है, तो वो उसकी एक सेंट्रल लेवल पे काउंसलिंग हो रही है। द काउंसलिंग इज गोइंग ऑन इन द सेंट्रल लेवल, so you can attend that online counseling also for those. And also the uh, uh, videos of those counseling available at IGNOU archive. When you see, check the website, IGNOU website, and go far below on the third row or second column, from left to second or third column, you will find the IGNOU online and IGNOU archives, Gyan Darshan. ये so many, there are the online नूरुल जी, channels. नूरुल जी, नूरुल जी, नूरुल जी, जी, मैं अपने विद्यार्थियों से सबसे एक बार बात कर चुका हूं कि आप इग्नू की वेबसाइट और आरसी वेबसाइट को अवलोकन टाइम टू टाइम करते रहें। जिस तरह आपको क्वेरी हुई कि पता नहीं ये बताया नहीं बताया, हमारे विद्यार्थियों की क्वेरी भी रहेगी जब तक वो आरसी की वेबसाइट का अवलोकन टाइम टू टाइम नहीं कर। ठीक है सविता जी, यू प्लीज कैरी ऑन। Yeah. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, respected Regional Director, sir. सविता जी एक मिनट एक मिनट एक मिनट। Yes, sir. मैं ये चाह रहा था, अगर आप में से, नूरुल में से, अगर कोई पॉसिबल हो हमारी वेबसाइट को अगर इसमें विद्यार्थियों को उनको विजिट करने का अगर तरीका बता पाए हम लोग। डॉक्टर साहब मैं बता देता हूँ अगर आपका आज्ञा हो तो। जी प्लीज प्लीज, नूर सविता जी के बाद में। जी जी। Thank you, sir. And you and Nurul ji has very nicely explained all the things regarding the IGNOU system and what the students they have to do for their certificate and semester-based programs. Further, as far as some online students are also there, those who are having some query where to submit assignments. I just want to tell that the students who have taken admission for online programs, they are not supposed to submit the hard copies at the ODS study centers. Their program will be online program and their assignments will also be submitted online as PDF through the LMS portal only. The link of the LMS portal has been sent to all these concerned learners of online programs in their confirmation email. They have to log in to their account through that their login ID and password that they have generated for taking the admission. And on that LMS portal, when they will open, they will see the assignments and also the due dates of submission of assignments. And in those links only they have to submit their assignments. When they will submit their assignments on those links only, then only their progress will be recorded. If you will submit through hard copy or at study centers, then the LMS portal will remain blank for your progress as 0 and you will not get marks. And your marks will also be reflected online through that LMS portal only. The assignments will be evaluated online and marks are also be updated online through the portal only. So make sure those students, because many students we have come to know that those students who have taken admission through online also, they have submitted hard copies of the assignments at the local study centers. So any of such students, those who have submitted the hard copy and they have not yet submitted the assignments through that LMS portal link, so I request all those learners to log into your accounts through your login IDs and password that has been created and submit the assignments through that link only, so that your progress get recorded there, that you have submitted the assignments as per schedule, and accordingly those assignments which have been submitted through PDF only will be evaluated. The hard copies of the assignment that you submitted will not be evaluated. This make sure, because your system is different from the ODS systems. And many students of June 2023, those who are having their exams for TE June 2023, they are also having lots of query that their roll number is not reflecting in this TE June 2023 exam form link. So let me just make
clear that this exam form submission link is for the ODL programs. Your link or the ODL program link is exam form submission link is different, and the online program submission exam form submission link is different, and it is not yet uploaded on the university website. It will be uploaded in due course of time, sometime later. So you, all those students who have who have registered for the certificate programs and semester programs for January 2023 session, and their exams are due in TE June 2023. So they have to wait for that link for the online courses to be opened by the university, and through that link they will submit. And their exams schedule will also be different from this exam of TE June 23 of ODL program. Like presently, the exams of online courses of TE December 2022 are going on. Presently, this is the exam schedule that is going on for TE December 2022. So the online exams for the courses of TEE June 2023 link will be uploaded later on, and your exam schedule will also be uploaded accordingly. So don't panic that your roll number is not reflecting presently in this portal. And further, any of the students, those like one student of CBS said that assignments are not uploaded. So you just don't particularly go to that particular link. There are other links also, because sometimes the assignment they are uploaded in other courses also, which are common. Like in CBS, it is ECO, PCO, BCOA. So these assignments, they are uploaded in the BA BDP, and the link I have shared. So try searching the other links also, and you will find your assignment. It's not that the assignments, they are not uploaded on the website, but they are because there are some common assignments in some certificate programs. So you can find these assignments in the other main courses. So from there you can find those assignments. And if further any other query regarding study center is there, like for the students of LSC 0601, the assignments of these students, they are being taken up by the regional center only. The students, they can submit their assignments at the RC Chandigarh sub office, that is at Chandigarh, CDCL building, plot number 5, sector 28B, Chandigarh. Or if you are having your location near to regional center main headquarter office at Karnal, so if you feel comfortable, you can also submit there as per your convenience. But the assignments are being accepted for Study Center 0601 at Regional Center Chandigarh office. So the students of Study Center 0601, they can submit their assignment during working hours at the Regional Center sub office. And the other students who have their allotted study centers in Ambala or Patiala or in Chandigarh or other in Mohali and other cities, so they have to submit their assignments at the respective study centers. The assignments for the law courses, like one student was asking, it will be submitted at the Rajiv Gandhi National University of Law, that is RGNUL at Patiala. The study center code is 2250P. So you can submit your assignments there. If you cannot go, then you can take the address from our Regional Center Chandigarh website under the study center list, and the address is available there. You can submit by post also for those assignments. So these are the some basic queries. Other queries, if any student has, because most of the things have been said by sir. So what about the practical courses? Some students are asking counseling sessions. So first, like this, your induction meeting has been conducted. So there will be an induction meeting respective study center wise also, for which you will receive communication from your study center also. And when you will go to your study center, the ODS students, not the online students, the ODS students, when they will go to their study centers, they will find the counseling schedule there. And in the later stages, your practical counseling schedule, as and when it will be there, it will be told to you. But presently the university has decided that for most of the certificate courses, the counseling will be online. On pan India basis, nodal centers has been created to conduct the counseling online, and for which you will receive emails from study center, regional center also. And through those links, you will join your online classes that will be conducted for the online courses, certificate courses. So presently, this is the main update, that later on the counseling sessions will be clubbed on pan India basis,
and the nodal RCs on the pan India basis will conduct the counseling sessions online for those particular certificate courses, for which you will receive your updates from the concerned RCs. So do keep checking your emails that you have registered during the time of admission, and do check the website of RC Chandigarh also, and the main websites of IGNOU also. There you will find those details of your counseling session of the respective courses. Further, the counseling is also many counseling sessions are being taken up by Gyan Dhara, Gyan Vani. So you can see those IRC schedule is also there on the websites, and the learners can go to those links also and can attend those counseling sessions which they feel relevant to their courses. So presently the certificate courses students, their next exam is June 2023 for ODS students, and the online students, they have to wait a little for the link to open so that they can submit their exam form. Any of the students, if they have any query, the floor is now open to them and they can ask their query one by one. They can raise their hand, and Tejpal ji, please call the name of the student so that they can ask their query. You can. सविता जी, पहले एक बार तेजपाल जी को जी, दिखाने हाँ जी, दीजिए कि हमारे जी जी सोशल मीडिया हैंडल किस तरह से वर्क कर रहे हैं। जी सर, तेजपाल जी प्लीज। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। सर्वप्रथम सभी विद्यार्थियों का इस बैठक में पुनः अभिनंदन है। जो कार्य मुझे भी दिया गया है उसके बारे में मैं आप लोग को विस्तृत जानकारी प्रदान करने की कोशिश करता हूं। शेयरिंग मोड पर आप लोगों को जो भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा, जिससे कि आप लोग अच्छी से अच्छी जानकारी या जल्द से जल्द और शीघ्र से शीघ्र जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके, ये माध्यम है। अभी मैं शेयरिंग करूंगा तो थोड़ा समय लग सकता है। सुतो मैम, जैसे शेयरिंग हो जाएगी तो मुझे बता दें। जी तेजपाल जी, बिल्कुल। आ गई जी। आशा है अब सभी को इग्नो की जो मेन वेबसाइट है वो दिखाई दे रही होगी। ये इग्नो की मेन वेबसाइट है। यहाँ पर भी आप अधिकतम चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे अलर्ट्स हैं और इधर न्यूज एंड अनाउंसमेंट्स हैं। इसमें अगर मैं मेन बात बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस में यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट जोन है, और इसमें महत्वपूर्ण चीज है जो स्टूडेंट ग्रीवेंसीज है। जो आपकी ग्रीवेंसीज है वो यहाँ पे भी आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। डाउनलोड के अंदर जाकर आप असाइनमेंट्स निकाल सकते हैं। असाइनमेंट्स हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, और यहाँ पर और अलग अलग चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे जो अभी असाइनमेंट्स के बहुत सारे पर्सन पूछ रहे थे, तो आप लोग ये अलग अलग तरीके से हमारा वो बना हुआ है, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री। तो अभी क्योंकि अधिकतर आप लोग सर्टिफिकेट प्रोग्राम के हैं, तो ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम की यहाँ पे असाइनमेंट्स अवेलेबल है। जो भी लेटेस्ट अवेलेबल है वही असाइनमेंट आपने बनानी है। तो ये असाइनमेंट को डाउनलोड करने का और देखने का तरीका है। दूसरी जो वेबसाइट है वो हमारी है क्षेत्रीय केंद्र की। तो क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़ की ये वेबसाइट है। इसके ऊपर भी हमारी लेटेस्ट जानकारियां उपलब्ध रहती हैं। अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पे ये देखेंगे आपकी जो ऑनलाइन इंडक्शन मीटिंग है उसकी भी जानकारी है। अभी हमारा कॉन्वोकेशन हुआ है तो डिजिटल आपको डिग्री कैसे डाउनलोड करनी है। रिवैल्यूएशन के लिए एक नोटिफिकेशन आया था वो डला हुआ है। ऑनलाइन जो कोर्सेज के बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे अवेलेबल है, उनके जो एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हुआ है उसका यहाँ पे नोटिफिकेशन डला हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको देखूं तो आप लोग दो चीजों को थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति मत बनाना। क्षेत्रीय केंद्र के दो ऑफिस हैं। मेन ऑफिस करनाल में है और हमारा सब ऑफिस CDCL सेक्टर 28 चंडीगढ़ में है। तो उसकी भी मैं अभी आपको जानकारी दे देता हूँ पूरी। कॉन्टैक्ट अस में जाके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेन ऑफिस का यहाँ पे हमने डाल दिया एड्रेस, उसका गूगल लिंक भी डला हुआ है। मोबाइल नंबर यहाँ पे जो लैंडलाइन नंबर है ये भी उपलब्ध है। लोकल ऑफिस है। ईमेल आईडी कॉमन है हमारी दोनों की। वेबसाइट RC चंडीगढ़ की। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, चारों अकाउंट यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप लोगों से सभी से आग्रह है कि कम से कम इन अकाउंट्स को जरूर लाइक कर लें, फॉलो कर लें, जिससे कि शीघ्र से शीघ्र जो भी जानकारी क्षेत्रीय के अंदर इनके ऊपर
अपलोड करे वो आप लोगों को शीघ्रता के साथ प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार आप इन चीजों का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि जितना यहाँ पर संपर्क में रहेंगे उतनी ज्यादा जानकारी आप लोगों तक पहुंचेगी। उदाहरण स्वरूप मैं दिखा देता हूँ, ये फेसबुक पेज है हमारा। फेसबुक पेज के ऊपर काउंसलिंग से रिलेटेड अन्य जो लेटेस्ट जो भी जानकारियां हैं जो आपको वहां पे, ये देखिए डिजिटल के लिए है, आज की आपकी जो इंडक्शन मीटिंग थी उसका यहाँ पे एक फ्लैयर डला हुआ है, ठीक है, और ये जो नोटिफिकेशन है रिवेल्युएशन से संबंधित वो डले हुए हैं। तो यहाँ पर सभी जानकारियां यहाँ पर, चाहे वो मुख्यालय से संबंधित है, वो चाहे क्षेत्रीय केंद्र से संबंधित है, वो यहाँ पर उपलब्ध रहती है। लेकिन इसके लिए आपको लाइक का बटन और फॉलो का बटन जरूर दबाना पड़ेगा, तभी ये जानकारी आप तक शीघ्रता के साथ पहुंच पाएगी। उसी प्रकार मैं एक बार ये ट्विटर का भी अकाउंट आपको दिखा देता हूँ। तो ये ट्विटर अकाउंट है हमारा, तो इस पे भी हमारी ये जो जानकारियां हैं वो अवेलेबल रहती हैं, तो आप इसका भी प्रयोग करें। आजकल बच्चे ज्यादातर इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो हम इंस्टाग्राम के ऊपर भी उपलब्ध हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जो इंस्टाग्राम पे हैं बच्चे वो इंस्टाग्राम के ऊपर भी इन चीजों को देख सकते हैं। तो सभी जानकारियां यहाँ पे उपलब्ध रहती है। एक महत्वपूर्ण चीज मैं जरूर और बताना चाहूंगा, ई ज्ञान कोश, ये ई ज्ञान कोश करके अपनी एक वेबसाइट है, इस पर इग्नू का सभी स्टडी मटेरियल सॉफ्ट रूप में उपलब्ध है, कुछ वीडियोज भी उपलब्ध रहती हैं। तो आप लोगों से आग्रह है, जिनकी कई बार बुक्स उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, ये लेट पहुंचती हैं, वो अपनी बुक्स को, उस मटेरियल को यहाँ पर सॉफ्ट मोड में देख सकते हैं और अपनी स्टडी में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं कि जो जानकारी मुझे प्रदान करने के लिए कहा गया था वो मैं आपको प्रेषित कर पाया। अगर फिर भी कोई संदेह की स्थिति हो तो मुझसे आप बात कर सकते हैं। सुनीता मैम धन्यवाद आपका। सर आपका भी धन्यवाद। थैंक यू तेजपाल जी। जी सविता जी, अब कुछ हमारे विद्यार्थी जो बात करना चाहते हैं उनको वन बाय वन। हाँ जी सर, एक चीज है, कुछ स्टूडेंट ऐसे जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स के हैं, जैसे विकास शर्मा, वो लिख रहे हैं कि मैंने MBA ऑनलाइन में एडमिशन लिया हुआ है बट मुझे हार्ड कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल नहीं मिला है। सो आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म दैट द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एडमिशन इन OL programs, ऑनलाइन प्रोग्राम, दे विल नॉट रिसीव द हार्ड कॉपी ऑफ द स्टडी मटेरियल, दे हैव टू डाउनलोड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द स्टडी मटेरियल फ्रॉम eGyan portal. So this is for information, general information for all the online students. So kindly download the study material from eGyan Kosh website only. नॉट ओनली दैट डॉक्टर सविता जी, कुछ लोग हैं जिन्होंने 15% का एग्जाम्पशन लिया है, उनको भी स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा जी, तो भी डाउनलोड करना पड़ेगा इग्नू का सॉफ्ट कॉपी। यस सर जी। पहले मनदीप वर्मा जी को बुला लीजिए। मनदीप वर्मा जी बोलें। मनदीप जी आपने हैंड रेज किया हुआ है, तो आपसे आग्रह है कि अपनी बात रखें। सर गुड मॉर्निंग सर। सर अभी तक क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है और असाइनमेंट के लिए 30 अप्रैल लास्ट डेट है सर, तो ये कैसे हो पाएगा सर? मनदीप जी, ये आपकी पहली क्लास है और इसके बाद काउंसलिंग शेड्यूल आपको दिया जाएगा, और कुछ क्लासेस ऑनलाइन भी हैं जिसके लिए हम आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप RC वेबसाइट और जितने भी हमारे सोशल हैंडल्स हैं सोशल मीडिया के, आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू। दूसरा क्लासेस नहीं होती है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दिस इज अ काइंड ऑफ काउंसलिंग सेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। आपकी काउंसलिंग्स होंगी जिसमें आप अपने इश्यूज को, अपने एकेडमिक प्रॉब्लम्स को रखेंगे एंड काउंसलर्स विल सॉल्व। से फॉर अगर आपका कोई कोर्स 4 क्रेडिट का है तो मैक्सिमम 4 क्लास होंगी उसकी, ठीक है? थैंक यू। इग्नू इज विद यू, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इग्नू इज विद यू, इग्नू आपके साथ है। थैंक यू सर। नेक्स्ट प्रीति बघेल जी। प्रीति बघेल जी को कुछ कहना है? आपने हैंड रेज किया हुआ है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरा नहीं, एक और है। प्रीति आप अपनी बात रखिए, हम सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। सर वो नेक्स्ट कैंडिडेट को ले लेते हैं जी। अनिकेत आनंद, आपने हैंड रेज किया है, अपनी पर्सन को पूछ सकते हैं।
हेलो जी अभिनंदन, रखिए अपनी बात से। सर, प्रैक्टिकल लैब्स के बारे में पता करना सर, बीसीए क्लासेस के लिए वो भी आगे अपडेट होएगा क्या? प्रैक्टिकल्स आपके कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं जो एग्जाम के जस्ट बाद होते हैं, कुछ पहले होते हैं। सो रेस्ट अश्योर, आपको एवरी एंड ईच इंफॉर्मेशन विल रीच टू यू। आपको इन्फॉर्म किया जाएगा प्रैक्टिकल्स का शेड्यूल। ओके सर। सर, और वैसे एक असाइनमेंट्स हैं जो हमारी बीसीए की, उसके अंदर कुछ इमेजेस हैं वो सिर्फ कंप्यूटर्स की हैं, तो हाँ, उनको कैसे पॉसिबल होएगा असाइनमेंट्स में? तो हमको कटआउट लगाना है उसका कि ड्रॉ करनी पड़ेंगी वो? नहीं वो आप यूज कर सकते हैं, कट करके फोटो खींच करके वो आप उसको लगा सकते हैं। उतना बड़ा ड्रॉ कहाँ कैसे कर पाएंगे आप, एंड इट इज नॉट एक्सपेक्टेड ओके ऑफ। वो ओके सर, सारी चीजें थैंक यू आपको दैट। काउंसलिंग समय मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाए। एटलीस्ट जो तो सर प्रैक्टिकल बेस उस वाले प्रोग्राम हैं ओके ओके उनकी क्लासेस काउंसलिंग और जल्दी इन शुरू। काउंसलिंग्स का सर लिंक मतलब पर्सनल वो ईमेल आएगा कि इस इग्नू की वेबसाइट पर ही अपलोड होएगा सर? वेबसाइट पर भी होगा, कोशिश करते हैं हम लोग काइंड ऑफ एसएमएस और ईमेल भी भेजें, बट वेबसाइट पर तो होगा ही होगा। ओके सर, थैंक यू, दैट्स ऑल माय क्वेरी सर। थैंक यू। Hello. जी, Hello. कमल चोपड़ा जी, वेलकम। Sir, thank you very much, sir. Sir, actually, I have applied for CFL. It's a CFL. like foreign language, basically a French language Yeah, certificate examination, sir. yeah. So what is your query? I just want to say one thing or request you one thing, sir. Whether we have classes or not, sir, on that particular French classes. French classes will be online, I think, because it is under the umbrella of low enrollment. Okay. आपको And ऑनलाइन शेड्यूल भेजा जाएगा। sir, that means ki we will receive the emails, I think, na, Yes, for that online classes. yes. Right, sir. Right. Okay. Akshit Let Sharma. me add here that the French Yes. classes was conducted recently, very recently online, and you have not gone through the website, IGNOU website, I think. So you just go for the videos that must be available on the ignoonline.ac.in or on the YouTube. But keep a watch, keep an eye on the IGNOU website so that you may attend the French courses counseling. And moreover, you can ask the course coordinator. The course coordinator, when you download the prospectus, in the prospectus there is a course coordinator name and email address. So you can email to them. They will send you the recording also. नूरुल जी, इसको एक बार और हाईलाइट कर दीजिए। हालांकि मैंने भी कहा, तेजपाल जी ने भी कहा, सविता जी ने भी कहा, आपने भी कहा कि हमारे सारे स्टूडेंट जो एनरोल हुए हैं उनके लिए बहुत सारी काउंसलिंग सेशंस आर्काइव में ऑडियो एंड वीडियो के रूप में ई ज्ञान कोश के पोर्टल पर उपलब्ध हैं। जब तक आपको कोई शेड्यूल नहीं मिलता है, आप उनका लाभ जरूर उठाएं। अक्षित शर्मा जी, मन नंबर एक लाइन में भी ऐड कर दूं, मैंने जस्ट अभी एक लिंक डाला है इसमें मैसेज बॉक्स में, जो हमारे पास वीडियोस थी उनका भी मैंने लिंक अभी शेयर कर दिया बच्चों को। वेरी गुड। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स इस इंडक्शन मीटिंग में हैं, सारे उस लिंक को नोट कर लीजिए। गौरांश चावला कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार सर, मैंने इस बार जनवरी में एडमिशन लिया है एमबीए के लिए, बट मेरा अभी रिलोकेशन हो गया जॉब की वजह से पुणे में, तो रीजनल सेंटर ट्रांसफर करने की क्या प्रोसीजर रहेगी सर? सिंपल एक ईमेल डाल दीजिए अपने पेरेंट आरसी को कि अभी मैं यहाँ पर हूँ, ट्रांसफर हो जाएगा। इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। ठीक है सर, और जहाँ पर ट्रांसफर लेनी है उनसे भी कुछ परमिशन लेना उनको एक पड़ेगा? कॉपी कर दीजिए। नहीं, इससे देखिए, उनको एनओसी वहाँ मांगी जाती है जहाँ प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम है। सपोज कोई बीसीए का स्टूडेंट अगर पुणे से यहाँ आना चाहता है तो पहले उनको हमसे एनओसी लेनी होगी। एनओसी वाई एनओसी, कई बार क्या होता है कुछ प्रोग्राम हमारे पास उपलब्ध नहीं होंगे तो हम उनको मना कर देंगे कि सॉरी दैट प्रोग्राम इज नॉट अवेलेबल विद अस, उसका हम ट्रांसफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जितने भी आपके नॉन प्रैक्टिकल हैं और हमारे पास उपलब्ध है, इवन नहीं भी है और हमारे जो 0600 पर एक्टिवेटेड है, तो हम उसको ट्रांसफर एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है सर,
और सर अभी एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट ओपन हो गई है तो उसमें मैं पुणे का सेंटर भर सकता हूँ, एलिजिबल हूँ उसके लिए जी, study उसमें के तो आप एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया कहीं भी डाल लीजिए। आप पुणे के हो, चंडीगढ़ में एग्जाम सेंटर लीजिए। आप चंडीगढ़ के हैं, आप पोर्ट ब्लेयर में एग्जाम सेंटर ले लीजिए। दिस इज अ फ्रीडम गिवन टू द लर्नर्स। ठीक है सर, शुक्रिया सर, यही क्वेरी थी। थैंक यू। प्रज्वल वर्मा जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, बताएं। सर मैंने एमबीए ऑपरेशंस मैनेजमेंट में एडमिशन लिया हुआ है सर। जी। एक्चुअली बात यह है कि मैंने एग्जामिनेशन सेंटर चंडीगढ़ लिया है, जबकि मेरे पास सर नज़दीक मेरा होशियारपुर डीएवी कॉलेज लगता है। ओके। जब मैंने एग्जाम फॉर्म भरा था तब उसमें पोर्टल में होशियारपुर शो नहीं कर रहा था। तो सर मेरा ये है कि क्या एग्जामिनेशन सेंटर को मैं दोबारा चूज कर सकता हूँ? नो, आई थिंक नो। क्या सर रीता जी रीजनल नहीं कर सेंटर? पाएंगे ना? सर ये देखा नहीं लो। कर, अभी ऐसे सर ये नहीं कर सकते, बट sometimes the university opens the link for change of exam center during the last hours before the examination. It sometimes they give the option, sometimes no, so you can check the website. Keep on checking the website before the examination the last 7 days. So when if the link is open, you can change your studies exam center, so there you can check, change the exam center as per the availability of the question paper, as per the possibility of the change that is it is showing. Otherwise you can email to RC Khanna when you will get your hall ticket, that due to some reason now you are located here or this is the nearest to your place, so you want to change your exam center from Chandigarh to Hoshiarpur as per the code of the exam center, and if the question paper will be available there, then they will provisionally allow you to change the exam center, but it depends upon the RC Khanna and the availability of the question paper at the your choice of exam center in Hoshiarpur. So this is the two things. You can look for the exam center change link on the website before the examination in the last week of May, or you can request the regional center Khanna as per the availability question paper. They may allow you provisionally to change your exam center. So these are the two things. गुड, थैंक यू। ओके मैम। सो मैम रीजनल सेंटर खाना की कोई डिटेल्स वगैरह मिलती है मुझे प्लीज? The email is rckhanna@ignou.ac.in, वहां पे आप कर सकते हैं। अदरवाइज जो है अगर आपको एड्रेस चाहिए तो वेबसाइट पे एड्रेस भी अवेलेबल है खन्ना का। इट इज इन खन्ना, गुलेपुर रोड, ITI है। मैम यस मैम, मैं लास्ट में कब तक खुलती है ये पोर्टल के लिए एग्जामिनेशन सेंटर चेंज के लिए? It depends upon the university whether it will open or not, but sometimes जो है in last T it was open, so but for few sometime it is open for very, or at least just for a day or something like that. So you can look for the website, keep on checking the website. If the option is there in the exam form submission link is there, there where you can change your exam center, then you can change. Otherwise you can request regional center Khanna or the other students also, if during their posting or some army students are also there, so who get their posting changed, so they can request the concerned regional center. Sometimes the students on emailing to RC Chandigarh that they want to change to Mumbai, they want to change to Delhi, they want to change to Goa, Jammu, and any other places in South and other countries. The thing is that the rule is that you have to request or email to the concerned regional center under which the city or the exam center falls where you want to appear, or where your new exam center is located. So that concerned regional center you have to request by email, or you can send an application. मैम मेरा रीजनल सेंटर चंडीगढ़ है। इज इट मैटर टू मेल टू द खन्ना और टू रीजनल सेंटर चंडीगढ़? If you want to, you can make a copy to us, but you want to appear in Hoshiarpur, so you have to request RC Khanna. But the data will be available after 15th May. There will be some possibility that they can check the website, their data and availability of question paper. So after getting your hall ticket, you have to request regional center Khanna. Okay. After getting the ticket. Hall ticket that will be available on the website in the last week of May before the examination. You can download the hall ticket there, and then you can send a scanned copy of the hall ticket by email to RC Khanna, and you can contact RC Khanna or telephone also. The details are available on their website and IGNOU website also under the regional center network. So there you can get the contact details, and then you can contact them and request them. But the matter is that as per availability of question paper, subject to the availability of question paper, the exam center is changed.
It is not that that you will request and it will be considered. Okay, it depends upon the seats and the availability of the question paper. Dr. Savita ma'am, thank you so much. You are really helpful for me. Thank you so much. Rajat Panchal. Yes, Sahil Arora. हेलो गुड मॉर्निंग सर. Good morning. सर मेरा आरसी चंडीगढ़ है जो 601. सर मेरे को इशू ये आया कि कल मैं वहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए गया तो वहाँ पे वो कहते हैं सबमिट नहीं करेंगे, मेन आरसी में सबमिट करेंगे. तो सर इसके रिगार्डिंग हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं प्रोवाइड की गई कि वहाँ पे सबमिट नहीं हो रही है, और आरसी में सर वर्किंग आवर्स में सबमिट होती है, वर्किंग डेज में. इसके रिगार्डिंग हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं थे. तो मैं वहां से सर मेरा लगभग जो घर है वहां से पड़ता है 350-400 किलोमीटर दूर मेरी सिटी पड़ती है. तो मैं वहां से वापस आया हूँ घर जाके. तो इसके रिगार्डिंग सर क्या मैं इसको स्पीड पोस्ट या कुरियर वगैरह कर सकता हूँ यहाँ से? Yes, you can send through speed post. But one thing, Dr. Nurul ji हैं? जी. Kindly announce the students कि no students. क्योंकि those students whose study center is 0601 at USOL Punjab University. Then Yes, they sir. may submit or in person, or they may send their assignments at IGNOU Regional Center. You can write the Senior Regional Director, IGNOU Regional Center, Chandigarh, CDCL, Sector 28B, Madhya Marg, Chandigarh. They may either send by post or they can submit by hand between 10 a.m. to 5:30 p.m. and on all working days except Sundays and Saturdays and public holidays. Okay. Now, सर इसके रिगार्डिंग ये था कि एटलीस्ट सर जब भी ऐसी कोई सिचुएशंस आती है तो हमें नोटिफिकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए. अब सर Sahil, ये recent update है and we are trying to resolve. We are also worried about as you are worried, है ना? But this is the kind of सर क्योंकि अदर स्टडी सेंटर पे तो संडे को ही असाइनमेंट सबमिट्स होती है और रीजनल सेंटर पे वर्किंग डेज में हो रही है. बहुत जल्दी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी साहिल, है ना? ये बीच में कुछ उनका एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है जिसमें वो अभी तक वो सेंटर हमारा काइंड ऑफ अबेंस में है, और अबेंस भी अभी एक सप्ताह पहले से ही हुआ है ना. सर मैं आपकी बात में इस चीज से अंडरस्टूड करता हूँ. बस मैं इसके रिगार्डिंग था कि जब भी कोई ऐसी कोई सिचुएशंस आती है तो बाय मेल या इस तरह से स्टूडेंट्स को उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिल पाए तो अच्छा होगा, ताकि स्टूडेंट को इस बारे में पहले से इंफॉर्मेशन हो. साहिल, दिस इज योर यूनिवर्सिटी. थैंक यू वेरी मच. हम लोग अपने ऑफिस में इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि आज ही एक SMS, एक ईमेल चला जाएगा 0601 के स्टूडेंट्स को फॉर सबमिशन ऑफ देयर असाइनमेंट. ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर. गुड डे. Twinkle Sahi. Okay, sir. Hi, good morning, sir. So I have two queries regarding the MBA online program. First is can I drop few subjects in my first semester and take up those subjects in second semester? Second semester means you have taken already. I'm just asking. I have 7 subjects in my first semester. So in case if I'm not able to go through all the 7 subjects because I'm a working professional, so can I take 5 subjects in first semester and take the next 2 in second semester? Yes, you are talking about examination, na? Okay, exams I can do like that. You may appear in 5 subject or 3 subject as per your convenience in coming examination. Okay. And the rest you can appear with second semester examination. No issue. This is the kind of flexibility of the IGNOU. Okay, and one more thing, for the online, I have an MBA online, so the examinations will also be online, or I have to come in person and give the examination? The examination will be online and some study center will be allocated to you.
Okay. Dr. Savita, would you like to add? Yes, sir. The students for the online courses, they are not supposed to give the exam at their own place. This is a confusion among the student that they can sit there at their place at home and at their workplace or any other place, and they will appear for the examination. No, exam centers will be established, and you will have the option of giving the exams either through the CBT mode, that is computer based test, or the pen and paper mode. So the choice will be there. In the while you will filling the exam form, you can either opt for CBT mode of giving the exam, or you can go for pen and paper, but you have to come to the exam center and give the exam. Okay. Okay. So these will be like an MCQ based question, or like in That case will depend upon the question paper. We cannot predict anything because it is up to the university how they will taking the examination. Okay. Thank you so much. गरिमा सारस्वत क्या कहना चाहती हैं? हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। मैंने मॉर्निंग। एमसीए न्यू में एडमिशन लिया है। मेरा पहला डाउट है कि जो हम असाइनमेंट्स बनाते हैं वहाँ पे लिखा है वाइवा वॉइसेस होंगे आपके 20 मार्क्स और मतलब किसी पर्टिकुलर मार्क्स के। तो मेरा ये क्वेश्चन है सर, वो वाइवा वॉइसेस कब होंगे? वो आपको ड्यूरिंग शेड्यूल दिया प्रैक्टिकल्स? जाएगा, शेड्यूल आपको दिया जाएगा, डोंट वरी। ओके, ओके। और सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि मेरा जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो है एसडी कॉलेज। तो मेरे असाइनमेंट्स एसडी कॉलेज में सबमिट होंगे या सेक्टर 28 में जो आपका सेंटर है वहाँ पे सबमिट होंगे? आपका स्टडी सेंटर कौन सा बताया आपने? एसडी कॉलेज? एसडी कॉलेज सेक्टर 32। सी स्टडी सेंटर हमने उनको कहा है 0601 जिनका स्टडी सेंटर है, वहाँ अभी हमारा सेंटर फंक्शनल नहीं है। उनको हमने कहा है कि दे आर अलाउड टू सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट और बाय पर्सन एट बोथ ऑफ द रीजनल सेंटर, आइदर एट CDCL और एट करनाल। बट योर स्टडी सेंटर इज ऑलरेडी एलोकेटेड एसडी कॉलेज। यस सर। आपको अपने स्टडी सेंटर पर असाइनमेंट जमा करने हैं। नॉट ओनली यू, जिनको स्टडी सेंटर 0601 और 600 के अलावा अपने अध्ययन केंद्र पर ही वो असाइनमेंट सबमिट करेंगे। थैंक यू। ठीक है। प्रगति कुमार। प्रीति यादव। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, प्रगति बोलें। जी सर, मेरी भी क्वेरी यही थी कि जैसे सर मेरा सेंटर कोड है। डोंट रिपीट, ठीक है। अब आप समझ, आपको सवाल तो मिल गया ना, सवाल आपका था, जवाब भी आपको मिल गया होगा, क्योंकि टाइम भी कम है ना, हमारे पास और भी सारी क्वेरीज हैं। प्रीति यादव कुछ कहेंगे आप? दलजीत कौर, कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो बोलिए। वेलकम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। सर मेरा कोर्स है CCITS के, तो सर ये ODL प्रोग्राम है, तो सर इसकी असाइनमेंट्स का जो लिंक आज मुझे कल रात में ही मिला है, तो उसमें मैंने खोला तो उसमें शो कर रहा है फॉर जनवरी 2023 कि 31 मार्च है जो वो लास्ट डेट थी सबमिट करने की। नहीं, लास्ट डेट 31 मार्च ही थी, लेकिन यूनिवर्सिटी हैज एक्सटेंडेड लास्ट डेट बाय 30 अप्रैल। ओके सर, इट्स 30। और आई वुड नॉट से, कई बार और भी बढ़ सकती है, वैसे बढ़ेगी नहीं, लेकिन कई बार होता है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि दिस इज पीपल्स यूनिवर्सिटी। ओके सर, लास्ट डेट 30 अप्रैल है। ओके सर। सर और इसकी क्लासेस भी होंगे क्या, और कुछ प्रैक्टिकल? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, यू विल बी तो उसका लिंक हमें मिल जाएगा? श्योर, जिस तरह आपको आज का लिंक मिला है, सारे लिंक आपको मिलेंगे। ओके, तो सर इसके जो एग्जाम है, नो सर, जो असाइनमेंट्स हैं वो हमें बाय इन पर्सन सबमिट करने होंगे वहाँ? यू कैन, क्योंकि ये तो ऑडियो। आपका स्टडी सेंटर कौन सा है? आई ऑप्टेड फॉर चंडीगढ़ सर। चंडीगढ़, आपको अपने स्टडी सेंटर पे जमा करने, यूसोल के अलावा अगर कोई सेंटर है, ओके, आपको अपने स्टडी सेंटर पे जमा करने। प्रीति यादव। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और किन्हीं का कोई स्पेसिफिक क्वेरी है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून यस सतीश। हाँ जी। हाँ सर, नमस्कार सर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, एक्चुअली में मैंने ODL MBA में एडमिशन लिया है, तो जो LMS पोर्टल है, क्या वो ODL के लिए है? क्योंकि मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा था काफी टाइम से। वो ODL के लिए लिंक, ऑनलाइन लर्नर्स के लिए है LMS पोर्टल, उन्हीं को लिंक मिलता है। ओके सर, थैंक यू। ओके, गुड आफ्टरनून जी।
सर एक क्वेरी है मेरा, मैंने क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम से एडमिशन लिया है बीसीए में। ओके। एडमिशन तो इसमें मैंने सारा पूरा अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, दिल्ली में भेज दिया स्पीड पोस्ट से। अभी मुझे क्या करना है सर? मेरा केवल वाइवा रह गया था सर प्रोजेक्ट का। लास्ट टाइम मैं बीसीए कंप्लीट नहीं कर पाया था। मैं आपके ओल्ड एनरोलमेंट नंबर पर जितने भी क्या बोलते कंप्लीटेड हैं, अगर न्यू में जा रहे हैं, उसमें से जो एलिजिबल जो इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग है वो सारे के सारे ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना? वो मैंने एप्लीकेशन मैंने सेंड कर दिया था दिल्ली में। उसके बाद जैसे ही वो आपके नए एनरोलमेंट नंबर पर कोर्सेज आ जाएं, हाँ सर, उसके बाद जो बचा है दैट यू हैव टू कंप्लीट। सर उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेना पड़ता है, तो उसमें मेरा केवल वाइवा रह गया था प्रोजेक्ट का, वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। मेरा पहला एडमिशन भी न्यू बीसीए में था क्या? हाँ सर, लास्ट जो ओल्ड बीसीए था ना सर, मेरा ओल्ड बीसीए के ओल्ड बीसीए मींस जो रिवाइज था सर, वो भी रिवाइज था, सेम सिलेबस है। सेम सिलेबस है तो ठीक है। सर वेट फॉर अपडेशन। अभी मैसेज कैसे मिलेगा सर? नेक्स्ट क्या करना है मुझे? इग्नू की वेबसाइट पे देखिए, क्रेडिट ट्रांसफर का स्टेटस आपको दिखेगा। अपना एनरोलमेंट नंबर डालिएगा, आपको दिख जाएगा कि वो किस लेवल पर है। कहाँ पे सर? ये लोकेशन पता नहीं चला। मैं जो आपका इन्होंने तेजपाल जी ने जो एक लिंक बताया ना, स्टूडेंट सपोर्ट, स्टूडेंट जोन, उसमें आप जाइए, उसमें आपको स्टेटस अपडेट मिलेगा। क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम का कोई मैसेज आएगा सर? उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आए, सिंपल एक ईमेल डालिए, मेरा ओल्ड एनरोलमेंट नंबर ये है, नया ये है, मैंने क्रेडिट ट्रांसफर को इस डेट में अप्लाई किया था। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी। सर मैंने कॉल किया था यहाँ पे रीजनल सेंटर में, तो मुझे रिप्लाई मिला कि अभी दिल्ली से कुछ आएगा इन्फॉर्मेशन आपके पास, तो कुछ आया नहीं। अभी 2 महीने हो गए सर। टाइम लगता है एक्स में, क्रेडिट ट्रांसफर थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आप एक मेल करिए, एक बार एक मेल कर दीजिएगा राइटिंग में हमको, मैं पर्सनली चेक करूंगा उसको। प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून सर। मैं ये एक मेरा पहली क्वेरी ये थी कि सर मेरा जो स्टडी मटेरियल डिस्पैच पे स्टेटस 0 दिखा रहा है, तो वो उसका क्या मतलब है? कब आ रहा है? हमारा कुछ आइडिया है इसका? जो हमारे इग्नू की वेबसाइट पर जो स्टडी मटेरियल का जो स्टेटस है, उसमें होता है कि कौन सा मटेरियल आपको किस डेट में भेजा गया, राइट? हाँ सर, वो डिस्पैच जब तक हुआ नहीं है तो मतलब आएगा अभी है ना, मतलब बिल्कुल आएगा। और सर एक और मेरी क्वेरी ये थी सर, जैसे मैंने अभी 6 मंथ्स का सीएफएन कोर्स किया है के एनरोल किया है, उसमें सर जैसे जैसे असाइनमेंट वगैरह कब देनी होती है सर, इसकी कोई अपडेट की मेरे को कोई मेल कुछ है नहीं सर कि कब मेरे असाइनमेंट सबमिट करना है, ये काम मिलेगा? आप अभी हमने बहुत बार आपसे कहा है कि आप आरसी चंडीगढ़ की वेबसाइट देखिए, जब इस चैट बॉक्स में भी आपको लिखा जा रहा है कि आपको सबमिशन ऑफ असाइनमेंट 30 अप्रैल है। नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टूडेंट फ्रेंडली वेबसाइट है, विजिट। जी सर। ओके थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्कार, राम प्रकाश जी बताएं। हाँ सर, मैं आईसर मोहाली में अभी वर्किंग हूँ जी। सर मैंने एमएमसीए न्यू एडमिशन में लिया है, मेरा हिस्ट्री कॉलेज है सर। जी सर, मैं किसी वजह से मैं मतलब टाइम नहीं दे पा रहा हूँ इसमें, तो मैंने इस एडमिशन को विड्रॉ करने का सोचा है, तो मैंने ईमेल किया है ऑलरेडी। सो मैंने आपको मेल किया है सर कैसा प्रोसेस है सर, कितना टाइम लगेगा? मेल आपने किनको किया? मेल आपने किसको किया है? सर आरसी चंडीगढ़ और सीआरसी ना, सीएसआरसी। हाँ या सीएसआरसी में किया हुआ है। हाँ, और एमसी कोऑर्डिनेटर। देखिए, देयर इज ए काइंड ऑफ शेड्यूल कि आप इतने दिन से इतने दिन के बीच में कैंसिल कराते हैं तो आपको इतनी फीस मिलेगी, है ना? यस सर। तो वो प्रोसेस में होगा। अगर आपको फीस रिफंड का कुछ प्रोविजन होगा तो आपकी फीस भी आपके अकाउंट में डायरेक्टली जाएगी। यस सर। ठीक है सर, उसमें टाइम दिया हुआ था सर कि 90 दिन तक आपका होगा, उसके बाद आपको फीस रिफंड नहीं होगी। तो मैंने अभी 1 मंथ हुआ है सर अभी। कितना? 1 मंथ ही हुआ है सर अभी फीस पेमेंट करने के। 113 नहीं, 1 मंथ ही हुआ है सर अभी। 1 मंथ ही हुआ है, कोई बात नहीं। सीएसआरसी विल टेक केयर। सर तो सर कुछ अभी स्टेट सेंटर में सर जाना पड़ेगा कि फिजिकल कॉपी जमा करने के लिए सर? नहीं, स्टेट सेंटर का कोई रोल नहीं है। आपने सीएसआरसी को और आरसी चंडीगढ़ को अपडेट किया है। यस सर। विल टेक एक्शन। या ओके थैंक यू सर। नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। एक क्वेरी थी
ये एग्जाम जैसे मैं एक मिनट सविता जी, जरा मैं 1-2-4 फाइल पे साइन कर लूं प्लीज, स्टूडेंट को रेस्पॉन्ड कर दीजिए। जी सर हाँ जी बताइए। सविता मैम, ये एक क्वेश्चन था कि मैं एमबीए ऑनलाइन में एडमिशन लिया हुआ हूँ और एग्जाम मोड ऑनलाइन होगा थ्रू एनी प्लेस और आई थिंक आपने अभी सुना नहीं, अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था और मैंने इसी बात का उनको जवाब दिया था, सभी स्टूडेंट्स के लिए भी बोला था कि जो आप सोच रहे हैं कि आप अपने घर पे बैठ के देंगे वो चीज नहीं है। एग्जाम सेंटर होंगे, एग्जाम सेंटर पे आपको आना है, बट यू विल हैव द ऑप्शन, जो आपको एग्जाम फॉर्म जब आप फिल करेंगे उसी टाइम आपको ऑप्शन चूज करना होगा कि वेदर यू वांट टू अपीयर इन एग्जाम एज सीबीटी मोड or you want to go for pen and paper mode. So exam centers will be established and you have to come to the respective exam center. The exam center you can choose yourself under any regional center of your place of choice, but you have to come to the exam center and appear in the exam mode. You can choose CBT or pen and paper, that will be there. Okay, thank you ma'am. नमस्कार मैम। नमस्कार बताइए। मैंने ना पीजी डिप्लोमा एचआरएम में एडमिशन लिया है, परंतु लेकिन मुझे अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं मिला, और जिस क्लासेस के लिए आपने बताया था, सेंटर पे आया था पीयू में बताया था उन्होंने भी आप क्लासेस लगेंगी, अभी पीयू का भी बता रहे हैं ना कि अभी हमने बताया कि थोड़ा सा उनके कुछ ऑपरेशनल रीजंस है, इंटरनल मैटर है, जिसकी वजह से अभी वहाँ पे थोड़ा सा अभी रिन्यूअल नहीं हुआ है, तो वी आर सॉर्टिंग आउट द मैटर, यू प्लीज काइंडली वेट। एंड अभी जो है अभी जस्ट क्लोज हुआ है सेशन जनवरी 23 एडमिशन का, सो वी आर जस्ट फाइनलाइजिंग द डाटा एंड अकॉर्डिंग आफ्टर फाइनलाइजिंग द डाटा विल बी अलॉटेड टू द कंसर्न स्टडी सेंटर्स एंड देन द इंडक्शन मीटिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टडी सेंटर will also take place, and after that counseling and sessions information will be given to the learners. So you please wait, and in the meantime for certificate programs the online counseling is being conducted by the university. You can go to check the IRC, IGNOU Gyan Darshan, Gyan जो है वाणी, you can check those schedules and you can appear. Further, as I told you, nodal RCs have been made pan India basis पे, जहाँ पे जो concerned उनको certificate programs allot किए गए हैं, जिन certificate programs की जो counseling है वो online conduct होगी, तो वो जो काउंसलिंग के लिंक्स हैं वो आपको आएंगे, हम अपनी वेबसाइट पे भी उन शेड्यूल्स को डालेंगे, आप उनसे लॉगिन करके उन सेशंस को अटेंड कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स की जो काउंसलिंग है दैट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन थ्रू द नोडल रीजनल सेंटर्स, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन, ठीक है। आइदर यू कैन आल्सो गो टू द IGNOU वेबसाइट, IGNOU ऑनलाइन, there the recordings of the sessions are also there. IGNOU Facebook page is also there. There also जो है recordings of counseling sessions of earlier sessions, they are also present on the IGNOU RC Chandigarh Facebook page. We are also having previous recordings also on our YouTube channel. Also we are having many of the recordings of our counseling sessions. You can have a look and then you can see those videos which are relevant to your courses. But for the present session, the counseling will be conducted online and is being conducted online. We are sharing the information to the other learners of the courses whose nodal RCs are sending us the links and the schedule, and we are forwarding to the concerned students. So kindly keep in touch with your emails. Sometimes the new email that you receive from IGNOU, it goes into the spam. Many of the learners, when they come to the regional center, they say that they don't have received any email, not even the confirmation email. So when we tell them to check the email, search, write IGNOU in the search box, then they go check that yes, email has been received and has gone to the spam. So kindly, if there is an email of IGNOU is gone into spam, kindly recognize that yes, I know this email, and remove it from the spam so that you can receive the email. Like in the initial speech, Nurul ji said that you please check your details of the admission that you have filled. Sometimes the email ID is filled wrong. Some student, they give the email ID of some other, like their brother or father or mother or any of other. Sometimes when you go for the admission through cafe, the cafe person, he fills his own cafe email. The emails, they are going to the concerned email that is registered. So you please check your email whether it is correctly filled in your admission status, it is reflecting correctly, so that you can get the email. And if some change is there, you can email to RC Chandigarh that this is the change in the email, kindly update this email so that you can receive communication from the university that is being sent to you from time to time. So these are the things, but wait for the schedule of your relevant courses which will be shared through RC. Check the website, keep on checking the website of IGNOU Regional Center Chandigarh from time to time on weekly or daily basis so that you can get the updates regarding your schedules. Okay? Hello.
Yeah, Nidhi, you please, and after Nidhi, Mukul, you can say. यस मैम नमस्ते। मेरा एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है मैम। मैं PGDOM में मैंने एडमिशन लिया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे स्टडी सेंटर पे बेसिकली मुझे क्या-क्या फैसिलिटीज मिलेंगी एंड हाउ कैन आई बेस्ट बेनिफिट फ्रॉम इट? Like I have told you that in IGNOU there are counseling sessions are there, right? And these counseling sessions, they are basically doubt clearing session. It will not be face to face teaching like you have experienced in your earlier education system, like convention system. So there you have to come after reading your, if the schedule will be displayed by the university, so before going to that attend that counseling schedule, you have to read your course content of that particular course. If you have any doubts regarding any of the area of that particular course, you have to note that thing so that you can discuss with the concerned counselor. Their doubts will be cleared, and if you have any doubt in how to prepare the assignment, their guidance and counseling will be there. It's not regular teaching will be there. Right? So then assignment submission is there, but for study center 0601 presently the regional center is accepting the assignments. So as per your place where you are, you can either submit at regional center Chandigarh office at Karnal or at Chandigarh as per your convenience. Right? The last date is 30th April. Presently, if you have not got the study material, you can download. If you have opted for the hard copy and you have not got that, for the timing the material delivered to you, you can download the study material from eGyan course, prepare your assignments and submit as per schedule before 30th April. Right? And further, if you have any doubt before your examination, then you can also go to the study center and take time from the concerned counselor that whether they will be there. It's not that you will go and you will see all the teachers there sitting there. No, it's not that. Right? You have to go to the study center. You have to first inform them that I want to take counsel from this counselor regarding this area of my course, so that, and you can ask them whether when you can come and you can meet the concerned counselor. So you have to take prior appointment from there by visiting your study center, and according to the time they will give you the slot they will give you can talk to the concerned. Okay? मैम सेक्टर 28 वाले का मैम एड्रेस नहीं मिल रहा मैम कहीं पे जो चंडीगढ़ में सेंटर है। अभी आपको इसमें भी लिख दिया है। आई डोंट नो वेदर यू आर चेकिंग द मैसेजेस और नॉट। मैं दोबारा से फिर कॉपी कर देती हूँ। It is CDCL building, sector 28B, plot number 5, Chandigarh, Madhya Marg. I'm again sending this message. Hope you are able to see this message. Got it? मैम एक क्वेश्चन था। Yeah. मैम मैंने ना CFL के लिए एनरोल किया था। CFL फ्रेंच लैंग्वेज? हाँ जी। Yes, उसके बुक के अंदर ना वो CD के बारे में लिखा, वो CD ना कहीं ऑनलाइन मिल रही है ना कहीं मिल रही है, तो हाउ शुड आई स्टडी ना उसके ऊपर किसी ने वीडियोस बनाई हुई हैं, मतलब इंस्ट्रक्टर ने एक वीडियो दी हुई है। You can write to the program coordinator of CFL program. प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को जब एनरोल किया था ना उसके अगले दिन ही मेल करती थी, बुक्स तो मेरे को आ गई थी खुद की। नहीं बुक्स, हाँ जी बुक्स आने के बाद आपने ईमेल किया है? मैम मैंने ऑनलाइन बुक्स ली थी ना तो उसके अंदर PDF मिल नहीं रही, और ऑफलाइन भी जिन्होंने किया था उनको भी वो मिले नहीं है CD। अच्छा आपने ऑनलाइन ऑप्ट किया है। ओके। हाँ जी। You can mark a copy of that email. You can forward that email to RC Chandigarh. So we'll forward to the concerned, and according to if there is an availability, we'll try to get the link for you. Okay. Okay, ma'am. Good afternoon, ma'am. मैंने अभी एक क्वेरी पूछी थी फॉर ट्रांसफर ऑफ माय रीजनल सेंटर, तो उसमें मेरा स्टडी सेंटर भी चेंज होगा। तो अभी Goransh, will you please speak again, because due to some connectivity issue I couldn't get what you said earlier. जी मैम। मैम I have recently asked a query for transfer of my regional center from Chandigarh to Pune, but I wanted to ask where should I submit my assignments now? I have already dropped the email for transfer, so should I submit my assignments in Pune study center or in my current study center? When you are shifting to Pune? I'm moving in first week of May. First week of May. So if the last date is 30th April. So if you want, so you can submit your assignments here also. It will be evaluated. No problem. Okay, ma'am. And if I want to send them by post to the Pune center, is that okay? You can send them by post, but you can then after that you can check for your whether they have been received or not. If you are sending the application for the change today, we'll change it today. Then you can send
it to the RC address, the assignments, but keep the receipt of postal service with you. And also keep the PDF of the assignments or either the photocopy of the assignment that you will submit. So that okay. there will be no problem. Well, one more question. I have enrolled for January 2023 program. Should I submit my assignments now or in December 1? Which program? CFL? CFL only, ma'am. Yes, your exams will be due in June 2023. Yours is an ODL program? हाँ जी, ma'am. Okay, so if you want to submit, you can submit. Otherwise, if you don't want to submit, you can submit for December 23 in September. Okay, और मैं पूछना था ऑनलाइन सबमिशन हो जाएगी कि फिजिकल कॉपीज देनी पड़ेंगी? If you are an ODL student, you have to submit physically at the regional center. Okay. 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 Fine. Any other student? हेलो मैम. Yes. जी मैम, मैं ओडीएल से ऑनलाइन चेंज करवा सकता हूँ क्या? नहीं, मैंने आपको जवाब दिया था. प्रेजेंटली दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके मैम. और फर्स्ट सेकंड जब मैं ये ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म जब अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे बता रहा है सीट नॉट अवेलेबल फॉर गिवन कोर्स, सेंटर कोड 06036. 06036 को छोड़ के आप बाकी कर लीजिए, बिकॉज सम सीट्स हैज बीन एनहांस्ड. यू कैन ट्राई फॉर CDCL 06038D. If you want to go for Panchkula 06033, it is also there. We have increased some seats. Okay, So today you can fill, but the seats will be filled very shortly. So you can go for the courses today itself only. तो फिर मैम इसकी एग्जाम कहाँ पे लगेगी? किसके एग्जाम्स? जो अगर आप 06038D लेते हो तो आपके CDCL बिल्डिंग में एग्जाम्स होंगे. एग्जाम सेंटर यही बन रहा है. ओके मैम. ठीक है. If you want to appear in Panchkula, then you can go for 06033. ओके मैम, थैंक यू. मैम एग्जाम्स कहेंगे जैसे मेरा देखिए पहले मैंने BHM करी थी तो मेरा सेंटर RC03 तब. अरे हम आप बहुत बार बता चुके हैं कि आप पैन इंडिया कहीं भी एग्जाम सेंटर चूज करके रीजनल सेंटर वो चूज करें, उसके अंदर जो एग्जाम्स जो है सेंटर चूज कर सकते हैं. ठीक है. वी हैव इन्फॉर्म्ड. डोंट आस्क दिस बेसिक क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. Madam, it is repeated so many times. The address of the regional center, the exam related question, all are again and again the students. If any student has any if any other specific query other than the things that have already been answered, last 5 students are will be taken up. So I think if any other specific query is there, then you can say. Otherwise, the rest of the queries, most of them we have already answered. And sir, if you permit, then we can close the session now. Hello. Any other specific query? Good afternoon, ma'am. जी. गुड आफ्टरनून मैम. मैंने PGDCA में एडमिशन लिया है मैम. क्या इसके प्रैक्टिकल्स भी होंगे मैम? क्लासेस लगेंगी? ये बेसिक क्वेरी है. आप बार-बार आप जो जब तक हम जवाब दे रहे हैं आप कहीं और बिजी होते हैं, उसके बाद आप एकदम से जो है वो बताने लग जाते हैं कि ये मेरी क्वेरी है. All these queries have been answered. Wait for the schedule from your concerned study center. ओके मैम. और जितने भी शेड्यूल हैं आपके RC चंडीगढ़ की वेबसाइट पर भी अपलोड होंगे. We have reminded so many times. So please visit RC Chandigarh website. हेलो मैम. हाँ जी. मैम ID कार्ड कैसे हम डाउनलोड कर पाएंगे? मैं अपना ID कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाई हूँ. किस प्रोग्राम में एनरोल्ड है आप? मैंने सर्टिफिकेट कोर्स में ज्वाइन किया हुआ है HR. ओके. जी. आपका जो लॉगिन आईडी है ना, जी, पासवर्ड और आया होगा और ईमेल जो आया होगा, तो आपने जो जहाँ रजिस्टर्ड हुई हैं आप जी एडमिशन ले रहे थे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो आपका पासवर्ड था और वो था क्या कहते हैं जो यूजर नेम था, उससे आप एंटर कीजिए. आई कार्ड का जब लिंक जो मेल आया होगा उसमें हो जाइए और उसमें जो है डाउनलोड कर लीजिए और उसका एनरोलमेंट नंबर जो आपको आया होगा ईमेल पर आपका जी 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 उसको डालिएगा. पासवर्ड की जगह ओपन हो जाएगा. अगर तभी नहीं कर पा रहे हो तो आप अपना रजिस्ट्रेशन जो हुआ था जिसके आगे एस लगा हुआ है, हाँ जी, लिख के और अपना प्रोग्राम लिख के जो है आपकी चंडीगढ़ पर मेल कर दी, हम आपको अटैच कर देंगे.
ओके सर, मैं ट्राई करती हूँ सर। सर सेकेंड थिंग, मैम ने ओके ओके मैम ने ये क्लियर कर दिया था कि अगर ओडीएल कोर्सेज हैं, ओडीएल मींस डिस्टेंस में आपने दिया हुआ है ऑनलाइन में, तो आपने असाइनमेंट भी ऑनलाइन सबमिट करनी है, तो मैम वो भी क्या नहीं उसकी फोटोग्राफ क्लिक करके हमने सेंड करनी है? कितनी डेट होगी लास्ट में? 15 अप्रैल के बाद फीस लगेगी लेट, 15 अप्रैल तक आप 15 तो हाँ जी, वो अपलोड करना है आपको। हाँ जी, उस पे अपलोड करना है पीडीएफ में, वो अपलोड होगा। ठीक है। वो लिंक कब तक आएगा वेबसाइट पे? अभी हमारे पास कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, आ जाएगा, बस आपको अपलोड करना होगा और आपके पास वहां से लिंक आया होगा, पासवर्ड आया होगा, यूजर नेम, आप उससे एंट्री करिएगा। मैं ये चीज और सर मैं ये बात समझ नहीं पाई हूँ, नूरल सर वो जो है नहीं है। हेलो, मैं ये कह रहा था, हेलो मैं ये कह रहा था आपसे, आपका जो ये है क्या कहते हैं, जो ऑनलाइन का है, आपके पास ईमेल पर एक लिंक आया होगा और उसमें पासवर्ड भी होगा। हाँ जी सर, है ना, उस पासवर्ड से आप उसमें एंट्री करिए, उसी में चढ़ाने का आपको असाइनमेंट का मिलेगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। आप उसको ट्राई कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए एटलीस्ट। ओके सर, ओके सर। वन थिंग मोर, सर जब मैंने रजिस्ट्रेशन करी कोर्स में, उस टाइम पे मेरी जो फीस है वो डबल डिडक्ट होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम में उसमें एरर आ गया था, तो मैंने मेल ड्रॉप करा था बट मुझे कोई रिवर्ट नहीं आया कि मेरी 2 टाइम पेमेंट डिडक्ट हो गई है। रिवर्ट नहीं आएगा, csrc@ignu.ac.in और एक दूसरा ईमेल नोट कर लीजिए, रजिस्ट्रार SRD@ignu.ac.in, इनको लिख दीजिए। वो आपके अकाउंट में जब सारे एडमिशन कंप्लीट हो जाते हैं, फिर उसके बाद ऐसे भेजते हैं और फिर वो बैंक को जाते हैं, फिर वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो जस्ट वेट फॉर दैट, ईमेल देम एंड वेट फॉर दैट। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। Thank you. So let's stop here and let's end this meeting. So I'd like to invite again our regional director. Thank you one and all. Thank you Dr. Nurul ji. Thank you Dr. Sarabia ji. Thank you Tejpal ji. And thank you all the learners. This was a nice meeting and I hope कि हमारे स्टूडेंट्स को उनके जितने भी सवाल थे उनके जवाब मिल गए होंगे, और बाकी मिलते हैं टाइम टू टाइम, आपसे सबसे मिलते रहेंगे। हैव अ गुड डे। So this meeting is closed. धन्यवाद सर। Okay, thank you sir, and thank you to the learner. Best wishes to all. Thank you.